Om Shanti. Om Shanti. And what should be my next greeting? Happy New Year, right? So today is the first session of 2025. And what is our topic? Happy New You. So many hearty greetings for 2025 to you. And we welcome you once again to Shanti Sarovar for our weekly talk, Sunday evening talk. So once again, we are ready to give you refreshing topics, to give you that boost for every week before you head into your daily, weekly routines. So today's session is something different from our usual sessions, something special. So this year, there may be many resolutions for you as well. So what we can give you through this session, some positive input, we'll try. And before we start the celebration, let us head into a beautiful dance by Pari. And the song is also Happy New You. So let's give a warm welcome to Pari on stage. And she will give a warm start to our today's session. हमें जग बदलना है, व्यर्थ की झमेलों से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा, खुद को बदल तू। हैप्पी हैप्पी न्यू यू, खुद को किस दिशा में है तू बह रहा, आसमां की ऊंचाइयों को छोड़ क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ऐ खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे, देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा। सद्गुणों को भर ले तू, मेरे जैसा बन हूबहू, विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू। जग को बदल तू। Thank you, Pari, for this beautiful song and dance. So bringing energy to our celebratory session.
So before we head into, so we will once again give a round long applause for Pari. Thank you. Now, so I have few adjustments to make to this podium, and I would also request few adjustments in your sitting. Those who are sitting in the last rows, we would request you to please take some seats in the front rows. I would pause for a few moments while we make these adjustments. So the front seats are equally comfortable, and so if anybody wants to try, please. Okay. So thank you so much for agreeing to this request. Now we would move to our next part of the session, for which we would like to test your knowledge, general knowledge, with a quiz, and it will be a very light and fun quiz. So whenever we start our sessions in Sunday Talk, we give you an introduction about us. So now we would like to know how much have you heard about that. So we'll have some general knowledge questions about various topics about Brahma Kumaris, Shanti Sarovar, something you heard many times. So probably we'll have a very interactive quiz. So let me welcome on stage Vasanta Didi and team to lead us through this quiz. So Vasanta Didi is a senior faculty at Shanti Sarovar and has often been a facilitator for us. So over to you, Didi. Thank you. Om Shanti. Good evening. Happy New Year. Have you experienced any new in you? Newness in you? Yes? Have you taken any resolutions on New Year? What about personal? Have you taken any? Do you remember them? Do you remember them? Because many times, yes, we do take so many resolutions, and often we forget in 2-3 days itself. Yes? It happens? It happens? So, do you remember what you thought of New Year? How you want to celebrate, or how you want to lead this New Year as? Have you taken any? No one? No one? Only 2. Acha, 3. Yes. Few nodding their heads, but they don't want to raise their hands. No problem. So, yes, every year we celebrate. These 2 talks are fixed. How we should end the old year and how we can bring new year. And not only new year, but newness in the self. Okay? So today's talk is based on that only. We will be having Kuldeep Didi also with us. She will be sharing a lot of blessings and wisdom. So before that, we will have a quiz. Are you all ready for the quiz? Yes? Yes? So who had played last time when we had one quiz with Kahoot? How many of you played last time? That's it? Okay. So this is a very, how we can say, entertaining quiz you will be having. Every time everyone asks you not to use your mobile phones. But this time we are requesting use your mobile phones. So you can open your browser and type this so that you will also be playing. Only limited seats, that's why whoever do first, you will be entered. Kahoot.it. Yes? Finished? Everyone? That's it? Yeah, you have to put your name.
So actually this quiz is basically about what Lavneet Ben has said. Every week you are hearing Brahma Kumari's introduction, Shanti Sarovar's introduction. So how much actually you are absorbed? And what is Brahma Kumaris? And how we celebrate New Year in different parts of India. So general quiz, which we will learn so many things from this. Ho gaya? Yes. So now the quiz starts. Ready? Yes. Now, how often do you practice meditation? So there are options: daily, weekly, sometimes, have never practiced. इधर आ सकता हो क्या? So timer भी जा रहे हैं इधर. Yes. So their answers and either timer. Yes. So this is what the poll is. So which one is highest? Sometimes is 40%. So sometimes is 40%. So you want to do it often or daily, regularly, right? That's it. For you it is 10 minutes needed. For everyone it is little more, at least 20 minutes, 25 minutes, so that whole day I will be empowered, right? So this is what general poll is about. So just to know the pulse of the audience. Okay, next we will jump into that. In which state of India is the New Year celebrated as Ugadi? So your options are there. You check it and you press it in your mobile. Punjab, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu. Yes, now time. Yes. So what is the right one? Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. Yes? It's easy one, no? Because first question. Okay, next. So the leading one, means everyone is right actually. Only two were wrong, right? So everyone was right, but the one who has done fast. So that is main thing. So fastest and right, both are needed. So in that way, these are the rankers: first, second, third, fourth, fifth. So we want to have your name also on this, right? Okay, next. What is the primary form of meditation practiced by the Brahma Kumaris? Vipassana, Raj Yoga, Kundalini, Zen. Yes. So everyone is right. Wow. So everyone knows that Brahma Kumaris practice Raj Yoga meditation. Right? One want to become a Raja on our own selves. We can become Raja on others. We can rule. But I want to rule my own self. So Raj Yoga. Yeah. Next question. So now again Ayan. Who is Ayan? अच्छा इसीलिए कहते हैं आके आके बैठो ताकि आप वहाँ पर भी आगे ही रहेंगे. आते ही नहीं है तो फिर कैसे आगे रहेंगे? Okay. Now let's beat Ayan. Okay. What is the Brahma Kumari's belief about the cycle? Time is eternal and cyclic, time is infinite but random, time is linear, time begins and ends with creation, values and lifestyle. So what is the right answer? Time is eternal and cyclic.
जो सृष्टि चक्र का काल चक्र का ज्ञान समझाते हैं कोर्स में, इसीलिए सभी कोर्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 वीक बेसिक मेडिटेशन कोर्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आता है। टाइम इज समथिंग विच इज़ साइक्लिक ऑल द टाइम एक्चुअली। वीक साइकिल, डे साइकिल, मंथ साइकिल, ईयर साइकिल, सीजनल साइकिल, वाटर साइकिल, सीड साइकिल, human cycle, even the eternal time cycle also cyclic, and it is eternal. When it is cyclic, then it is always eternal. So that is the right answer, and 19 people has answered right. Okay, thank you. Next, again Ayan. That's good. Okay, let's go next question. Which day marks the start of the new year for people in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh? Diwali, Baisakhi, Lohri and Makar Sankranti. You don't need to say outside. Yes, time done. So what is the right answer? It's Baisakhi. So Baisakhi is 25 members. So now let's see the score. Who is the topper again? Ayan. Oh, now it's changed. Who is BK? What's your name? Ankush. Okay, that's good. So next, the new year in Kerala is called Vishu. Which of the following is an important tradition associated with it? Kerala. So what is the right answer? So placing a mirror usually placed with a lit oil lamp in the ritual offering. That is the Kerala New Year celebrated as main tradition. So how many percent? 19 members. So now again BK. Oh, very good. Let's move again. How many countries does the Brahma Kumaris have a presence in? See. हर हफ्ता सुनते हैं, आज भी सुना. The right answer is around 140. So which is 25 members are right. So around 140 countries we have branches, as well as we have like 120 countries we have established branches, let's say, and 140 countries we have services going on, right? So that is 25 members are right. That's good. Next again, oh, BK. Someone has to beat her now. Let's go next. What country is the first to welcome the new year due to its time zone? Which country? Bit difficult, huh? So which country? So the right answer is Kiribati Islands. So that is the right answer. Only 5 of you has answered. You know the answer or just randomly? Who answered the right answer? Just randomly, or you are using ChatGPT?
Because I am hearing some prompts holding the phone like this. You are using? No? Sure? Okay. So that is only 5 members. So that is because of the time zone, the first celebrated. Okay. So again BK is on top. So Anna is making a comeback with 3 in a row. So second place, 3 times she got that. Okay. So next. What are the 5 ages described by Brahma Kumaris? Yugas. देखे रखना. आप कोर्स किया है तो ये भी समझ में आ जाता है. सो कौन कौन से युग है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग. ये 4 युग तो सबको मालूम है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें और एक नया युग सीखा, वो है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग. अर्थात जब परमात्मा आते हैं इस सृष्टि पर, कलयुग विनाश और सतयुग की नई सृष्टि की स्थापना होती है, तो वो ट्रांजिशन पीरियड को संगम युग कहते हैं. संगम माना इट्स अ 2 चीज़ों का मिलना, राइट. अभी शाम हुआ तो ये शाम का समय भी एक संगम का समय है. सवेरे सवेरे होता है, अमृत वेला कहते हैं, वो भी संगम का समय. तो 2 चीज़ों का मिलाप होता है, तो वो समय है संगम युग, जब कलयुग का अंत, सतयुग की आदि होती है. तो वो है, तो आंसर इज ग्रीन, राइट. तो आंसर इज ग्रीन. सो 28 members answered right. That's good. Next. So BK is in high score. Yes, next. In which state is the New Year celebration known as Gudi Padwa, which marks the start of the Hindu New Year? हो गया? तो कौन सा है? महाराष्ट्र. So 41 members answered right. Next. Okay. Yes. Which mantra or affirmation is central to the Brahma Kumari's teachings? So everyone know that Om Shanti is our mantra. तो ओम शांति का अर्थ क्या है? शांति ओम भी बोल सकते हैं ना, दीदी बोल सकते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होता ना. ओम शांति, ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ क्या है? आप आते ही बोलते हैं ना, नीचे दिखते हैं दीदी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. ओम शांति माना, ओम माना मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का स्वधर्म है शांति. जब मैं ओम शांति कहती हूँ तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मीनिंग है. तो अभी जब भी आप ओम शांति बोलते हैं, सिर्फ ओम शांति नहीं बोलना, लेकिन अर्थ में स्थित होकर बोलना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ. ठीक है? तो 30 members have answered right. Okay, 17 players. Okay, where is the spiritual headquarters of the Brahma Kumaris? Very good. So right answer is Mount Abu. Right? Mount Everest भी लिखा है कोई? और माउंट कैलाश भी लिखा है. Okay, it is Mount Abu, which is in
विच स्टेट? राजस्थान में है. ओके, ऑलराइट. सो नेक्स्ट. ओके, Anil has the highest vote. What is the first activity performed on Ugadi morning? क्या करते हैं उगादी के दिन सवेरे सवेरे उठते ही? So it is taking an oil bath. तो 21 मेंबर्स आंसर्ड राइट, क्योंकि उगादी के दिन ये मेन है. उसके साथ ही पूरा दिन शुरू होता है. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट. What is the symbolic significance of eating Ugadi Pachadi during the Telugu New Year Ugadi? Yeah, the answer is signifies that life is a mixture of different emotions, experiences. So that we are symbolizing with the tastes. हाँ? कितने टेस्ट है? 5 और 6 11. कितने हैं? 6. हाँ, षड्रुचुलु. So 6 टेस्ट. तो फिर हम उसके बारे में उगादी के टाइम पर डिस्कस करेंगे. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ शांति सरोवर? एवरी डे व्हेन यू कम इन you see that outside. Only 24 people answered right. That is Shanti Sarovar Academy for a Better World. Academy for a Better World, वो है राइट आंसर. हाँ, वैसे तो शांति सरोवर को आप सब बुलाते हैं, वॉइसेस ऑफ पीस है, यहाँ पर हैप्पीनेस भी मिलता है, वैल्यूज़ भी है, ये सब तो है. लेकिन वैसे ऑफिशियल नेम बाहर जो लिखा है शांति सरोवर, बोलो सभी, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड. राइट. ओके, नेक्स्ट. हु इज लीडिंग नाउ? अगेन टफ राउंड. 3 players lost their answer streak of 3. Who is the founder of the Brahma Kumaris? So who is the founder? दादा लेखराज कृपलानी. राइट. सिस्टर शिवानी नहीं है फाउंडर, क्योंकि बहुतों को ब्रह्मा कुमारीज माना सिस्टर शिवानी ही सोचते हैं, लेकिन सिस्टर शिवानी वन ऑफ द बेनिफिशरी, वन ऑफ द सर्वर. बट जो दादा लेखराज, इस महीने में हम उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं. आपको रहेगा 19 जनवरी जो है, ब्रह्मा बाबा का हिस्ट्री आप सुनेंगे दादा लेखराज से. वो ब्रह्मा बाबा कैसे बने, लेखराज कृपलानी से कैसे उनका जीवन का परिवर्तन हुआ, कैसे परमात्मा उनमें प्रवेश किया, वो सब जो लाइफ स्टोरी है आप उस दिन सुनेंगे 19 को. तो ब्रह्मा बाबा ने मतलब दादा लेखराज के अंदर परमात्मा स्थापन किया है. राइट. तो फाउंडर फादर इज
दादा लेखराज कह सकते हैं। तो नेक्स्ट, यस, in Gujarat the new year is celebrated after Diwali and it is known as कोई है गुजराती यहाँ? Is there any Gujaratis here? Yes. इतने लोगों को मालूम है या ऐसे ही? हाँ, बेस्तु वरस वो लोग ऐसे बुलाते हैं नए साल को। दिवाली के बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो है। ओके, अच्छा, ऊपर 3 तो 3 में ही है ऐसे। अनिल कौन है? अनिल भाई या आप? विच अनिल? मीर कादा? अच्छा, నేను మీరు అనుకుంటున్నా అప్పటి నుంచి। अच्छा, दोनों के बीच में टाई चल रहा है अभी। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ऑडिटोरियम एट शांति सरोवर? सब आंसर्स राइट ही होना चाहिए। अरे इसमें भी रॉन्ग है। ओ बाबा, इसमें कुछ हम लॉजिक अप्लाई किए थे, वो वहाँ पर एनिमेट नहीं हुआ, तो पूरे दिख रहे हैं। फिर भी 35 मेंबर्स आर राइट। 13 वर्ल्ड पीस ऑडिटोरियम। अच्छा, ओके, शांति सरोवर ऑडिटोरियम, सो इट इज ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम। ओके, yeah, next. Okay, 3 are continuing. Which of these are 7 virtues of the soul? अच्छे से पढ़ के डालना। हो गया अभी। सो द राइट आंसर इज ऑल आर वर्च्यूज ओनली, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लेकिन एक्चुअली जो ब्रह्मा कुमारी कोर्स में हम सुनाते हैं, वर्च्यूज जो है आत्मा का 7 गुण। हाँ, आत्मा को सतोगुणी कहते हैं, 7 गुणों से भरपूर। तो वो गुण लव, पीस, पावर, प्योरिटी, हैप्पीनेस, नॉलेज एंड ब्लिस। तो 7 गुणों के से भरपूर है आत्मा। ठीक है, अच्छा, बी के आना नीचे चली गई। आना कौन है? हु इज आना? अच्छा, वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन एवरीवन। हाँ, ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग बिल्डिंग्स आर देयर इन शांति सरोवर? सो मल्टी सेलेक्ट करना है आपको। इसमें कुछ गलत भी है। अच्छा, राइट आंसर इज एक्चुअली इसमें राइट आंसर है आनंद भवन, ज्ञान योग भवन एंड सहयोग भवन। ये हमारे शांति सरोवर के बिल्डिंग्स है। बाकी पांडव भवन यहाँ का नहीं है। माउंट आबू का जो हेडक्वार्टर्स है पांडव भवन कहते हैं। तो ये 3 आंसर्स कितने लोग आंसर किए हैं? राइट आंसर्स कितने लोग बताया? आई थिंक ओनली 14 मेंबर्स आर राइट एक्चुअली। मेरे ख्याल से ओनली 14 मेंबर्स आर राइट। वो दिखेगा? ओनली ग्रीन, सो दैट। अच्छा, ये तो
तो फर्स्ट वन इज बीके अंकुश, आप एक बार खड़े हो जाओ. बीके अंकुश इज फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज बीके अनिल. वो दोनों युगल है, देखो दोनों के बीच में टाई हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड. वेरी गुड. सो दिस इज मीन्स हेल्दी स्पिरिट, राइट? Yeah, and third one is Anna. Big round of applause for Anna. You come regularly? That's good. So, this is what? This quiz. So, have you learned something new? Have you learned something new? You like it? Last one also? Who is the last? नहीं, सब फर्स्ट ही समझ लो. कोई लास्ट नहीं है. हाँ जी. In the previous question, there was option love, peace, and options. What do you mean by power? What is the important aspect of those aspects given options? What do you mean by that power? पावर इज आत्मा की जो शक्ति है. शक्ति माना फिजिक, नॉट फिजिकल. सो आत्मा की शक्ति, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट, व्हाट टू परफॉर्म, व्हाट नॉट टू परफॉर्म. इट टेक्स लॉट ऑफ योर पावर. अदरवाइज आई नो विच इज नॉट राइट बट आई स्टिल परफॉर्म. दैट मीन्स द सोल डजंट हैव द पावर. यू गॉट इट? हाँ, सिगरेट नहीं लेना है ये सभी को मालूम है, लेकिन मेरे ऊपर कितना कंट्रोल है कि सिगरेट नहीं पियो. तो इसमें आई नीड लॉट ऑफ पावर. मुझे मालूम है आप 4 बोल रहे हैं, मैं 8 बोल सकती हूँ, लेकिन उस समय मैं शांति से बैठूँ तो उसके लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए या कम शक्ति से भी चल जाएगा? हाँ. सो दिस इज स्पिरिचुअल पावर ऑफ द सोल. It is not the physical one. No. Because that's why I am saying those who have done 1 week meditation course, they undergo all these things. That's why we encourage everyone to do this 1 week meditation course. Right? अच्छा लगा सभी को? मज़ा आया? तो जो बनाए उसके लिए, उन सभी के लिए. Right? हाँ, तो अभी क्या करेंगे? अभी क्या करना है? ब्लेसिंग्स भी सुनना है, मेडिटेशन भी करना है. अच्छा, हाँ, ठीक. तो पहले हम एक डांस देखेंगे. निवेदिता दीदी पे आएंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, केक कटिंग रहेगा, सब कुछ है, इसीलिए बैठे रहेंगे आप. फर्स्ट वी विल सी अ डांस, देन वी विल हैव सेटअप हियर. आप सभी डांस कर सकते हैं? हु डांस? हु कैन सिंग? एनीवन इज देयर टू सिंग? अच्छा, वेरी गुड. ये सब कलाएं हैं, आत्मा के अंदर है, हर एक के अंदर सब कुछ है, लेकिन परसेंटेज कम ज़्यादा है. किसी किसी में एक कला को ज़्यादा रहती है तो वो उस प्रोफेशन में या उस लाइन में दे बिकम एफिशिएंट इन दैट. किसी किसी में वो कम है. बेसिकली द सोल गॉट ऑल virtues and all kalas, right? So Nivedita, you might have seen before also. She is a very good performer. International level also she has performed. And since she was very small, I think 3-4 years age, she has been performing in Brahma Kumaris. Now we see her so, means tall, because I have seen her like this. So, a big round of applause for Nivedita, and we will see a beautiful dance on this special occasion of
న్యూ ఇయర్. తాను నీలో లీనమైనది ఆదిశక్తి ఆకృతి అత్రిజాత పార్వతి తానువైన ప్రాణధవుని చెంతకు చేరుకున్నది. భవుని భువికి తరలించేలా ధరణి దివిని తలపించేలా చేయగలిగే వేళ భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిది ఈశా శివని వేదనగా వని వేదనగా పలికెను పదము పరేశా. So thank you, Nivedita. So
it is an honor for us as well that she came on this stage. She is an award-winning performer. She has won many awards nationally and internationally. So thank you so much, Nivedita, for bringing this wonderful performance for us. So now that you are all energetic, we would like to also bring in a sense of peace that we usually experience through meditation. So now I hope you can, like Didi said, what we practice here is which meditation? Raj Yoga meditation. And the first step that we usually take in Raj Yoga meditation is trying to realize who we truly are. And what is the introduction that we give about ourselves is Om Shanti, I am a peaceful soul. So with that in mind, we will have a small meditation, and with this meditation what we want you is try to give that reinforcement to the resolution that you might have kept, reaffirm that thought, and try to visualize it, how you will enact it in this year. Try to use the power of visualization, visualizing yourself as the energy, as the divine light, and the guided commentary, as we call it, it gives us the thoughts. You just walk along those thoughts and experience the emotion and the feelings of peace and power. So we will have a small meditation. Sit straight, upright. Let your feet, if possible, be flat on the floor, and follow the commentary. Om Shanti. ये 9 मिनट देश और विश्व की सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। डिविनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं। मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ, निडर हूँ। Fearless and confident. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक गोल्डन वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूं। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार हर एक तक पहुंच रहा है। हर एक मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। हर एक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर। हर एक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है। हर एक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। परमात्मा की शक्तियां पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। Om Shanti.
So with these positive affirmations, or as we call in Brahma Kumari, Swaman. So we hope you can usher in this new year with new enthusiasm and confidence. So like every auspicious task is incomplete if we don't get the blessings of our, those who inspire us, those who lead us. So hence, our next step is to get blessings of our esteemed senior Didi, Kuldeep Didi ji. So she is a distinguished faculty of Brahma Kumaris, a lifelong Raj Yogi with over 65 years of experience in Raj Yoga meditation. She is a guide, spiritual mentor, and the backbone and the heart brain of this Shanti Sarovar. So let us give a big round of applause to Kuldeep Didi ji. Didi is an eloquent speaker, a great mentor, and she has inspired over 100 sisters to be like her. She has a life which has inspired thousands of brothers and sisters to inculcate spirituality in their life, to take up the practice of Raj Yoga meditation. So Didi ji is the director of Shanti Sarovar. She is the one who always takes care that we get prasad every time. She is the one who takes care that we get all the best facilities whenever we come in Shanti Sarovar. She is also the national chairperson of the sports wing of Brahma Kumaris. Given that we are in a place which is surrounded by many sports academies, so she has the thought to serve. Yes, the vice chairperson of sports wing of Brahma Kumaris, and she is also the member of the governing body of Brahma Kumaris Educational Society. So we would like to hear Didi ji's blessings and be inspired and take 2025 with the best energy that we can. Om Shanti. ओम शांति। सभी भाई बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग सब हर वर्ष हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, हैप्पी रहते हैं पूरा वर्ष। हाँ, कितने लोग समझते हैं हम पूरा वर्ष हैप्पी रहते हैं? हाथ खड़ा करें। पूरा वर्ष, एक दिन भी अनहैप्पी नहीं। हाँ, कोशिश नहीं। आप दृढ़ संकल्प करो कि मुझे इस वर्ष में किसी भी परिस्थिति में हिलना नहीं, सदा खुश रहना है। खुशी है ना, उसके लिए हिंदी में कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं, है ना। उसका डॉक्टर के पास भी दवाई नहीं है क्या? कोई डॉक्टर बैठे हैं इधर? हाँ, इस सभा में कोई डॉक्टर है तो हाथ खड़ा करें। चलो, आप डॉक्टरों के पास जाते, आप बोलो मेरी चिंता मिटा दो, तो क्या करेंगे? वो आपको नींद के पिल्स देंगे, है ना, स्लीपिंग पिल्स देकर, या तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेज करके अच्छी तरह से सुस्त बनाएंगे। सुस्त के साथ साथ और निराशावादी, ऐसा बनना है। हाँ, कई लोग देखे साइको रहते हैं, उनको बोलो ना साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते, दवाई नहीं, हमको दवाई नहीं लेनी है, मना वो स्टैंपिंग नहीं करना है कि मैं साइको हूँ। तो फिर खुश रहना चाहिए ना। तो खुश रहने के लिए हमें क्या करना है? कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। या बैठे बैठे मिठाई से खुश हो जाते? हाँ, मिठाई से क्षणिक खुशी मिलती है, खाने तक बोलते ना, जीभ पे धरी चाटी, अंदर जाकर माटी। यहाँ तक ही टेस्ट होता है, अंदर जाके तो सब मिट्टी जैसा बन जाता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो इसलिए खाने में, पहनने में, देखने में खुशी नहीं मिलती है ना। हम जाते मूवी देखने के लिए। मैं अभी स्टोरी सुना के आई उड़ीसा वालों को कि एक बार एक व्यक्ति जो है ना, गांव वाला था, अनपढ़, लेकिन उसने मेहनत करके बनारस में आचार्य की डिग्री ली, और वो छोटे गांव का था।
गांव वालों को कितनी खुशी होती है कि हमारे गांव का एक व्यक्ति आचार्य की डिग्री लेकर आ रहा है। बहुत ग्रैंड फंक्शन किया, उसका बहुत अच्छा सम्मान किया, लेकिन घर में आने पर पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बेल पर बेल बजाता रहा और बोला भाई दरवाज़ा खोल दे। वो पत्नी अंदर से बोली एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो दरवाज़ा खोलूँगी, नहीं तो आप फिर से दोबारा बनारस जाकर डिग्री लेके आओ। मुझे बताओ पाप का बाप कौन है? पढ़ा है? बोला नहीं। फिर से जाओ बनारस। अब किसी का इतना सम्मान हो और अपनी वाइफ उसका अपमान कर दे तो व्यक्ति की हालत क्या होती होगी आप सोचो। मेंटल हो जाएगा ना वो। शौक में आकर वो पागलों की तरह गलियों में घूम रहा था, कोई मुझे बता दे पाप का बाप कौन है। तो सब लोग देख रहे थे और हंस रहे थे। कोई खिड़कियों से देख रहा है, कोई बालकनी से देख रहा है, लेकिन सबको आश्चर्य लगा। अभी तो हम इसके फंक्शन में जाकर आए, ये डिग्री लेने से पागल होते हैं क्या, ये नहीं पता था। तो एक वेश्या ऊपर से उतरी। उसने कहा आप बहुत पवित्र आत्मा ब्राह्मण हो, मुझे मालूम है मैं बहुत नीच हूँ, लेकिन मेरा उद्धार करो। आप मेरे घर पर आइए, ऊपर चढ़ो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। बोला हरगिज़ नहीं, तू शूद्र, मैं ब्राह्मण, वेश्या गिरी हुई, तेरे घर में मैं पाँव रखूँगा? बिल्कुल नहीं। तो वो धीरे से बोलती है 2 गोल्ड कॉइन दूंगी, ऊपर आ जाओ। कहता ठीक है। हाँ? फिर जो है ऊपर जाने के बाद उसने बोला अगर आप मेरे घर में आज भोजन कर ले मेरे हाथ से बना हुआ, या नहीं तो आपको मैं अनाज ला के देती, आप ही पका लो। बोला नहीं, यह तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। वेश्या के घर में खाना बना के भी नहीं खाऊंगा, बना हुआ भी नहीं खाऊंगा। तो फिर उसने बोला 4 कॉइन दूंगी। कहता ठीक है। बना लिया उसने खाना, सामग्री सब बर्तन नए लाके दिए। तो उसने कहा मेरे कुछ पाप तो धुल गए, ब्राह्मण ने मेरे घर में खाना खाया, अब मैं परोस दूं तो मेरे और भी पाप कट जाएंगे। कि नहीं, हरगिज़ नहीं, और 2 कॉइन देंगी। ठीक है। फिर बोली 1 निवाला मेरे हाथ से खा लीजिए। वो बोला ये तो इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। तेरे हाथ से मेरे मुंह में खाना जाए, मेरा तो ब्राह्मण धर्म ही छूट जाएगा। और 2 कॉइन ऐड कर देती हूँ। तो कहा चलो खिला दो। और उसने एक थप्पड़ मार के बोला पता चला पाप का बाप कौन है आप सबको? लोभ। लोभ है ना, प्रलोभन में आके उसने अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया। तो हम सब क्या करते हैं? हम भी पाप के बाप के भी बाप है। पाप कर्म करते हुए भी हमें रियलाइजेशन नहीं हम पाप कर रहे। और पाप की माँ, अब देखो हमको पापों की सजा मिलती है ना। डॉक्टर के पास जाओ, माइसिन माइसिन सब, क्रोसिन, टेरामाइसिन, माइक और कितने नाम है। तो मना मेरा पाप। उसमें बहुत सारे डॉक्टर थे, कोई AIG से था, कोई अपोलो से था, कोई यशोदा से था, कोई किम्स थे, बहुत सारे डॉक्टर थे जिनका सम्मान किया। मैंने बोला आप सब डॉक्टर्स हैं, आपका हॉस्पिटल हमारे लिए क्या है? जो पाप करता है उसको ही हॉस्पिटल में जाना पड़ता है ना। वैसे तो अगर पुलिस वाला जेल में ले जाता तो बहुत इंसल्ट फील होती, यहाँ बड़े सम्मान से जाते, पर वो भी तो जेल है। जेल है या नहीं हॉस्पिटल? आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं वापस। जब तक डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करेगा, अच्छा सा बिल नहीं बनाएगा, तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। तो पाप की माँ है, मालूम है किसी को? सिनेमा बोलते, लेकिन हम बोलते ये है पाप की माँ। समझे?
कई पहले के लोग तो सिनेमा ही बोलते थे ना, सिनेमा नहीं मालूम था, इंग्लिश में सिनेमा बोलते, हिंदी में सिनेमा। तो पाप की माँ। अभी हम क्या बोलेंगे? सबके पास पाप के माँ बाप है ना? उनकी पालना में पल रहे हैं ना हम लोग। तो फिर इनके भी माँ बाप का भी माँ बाप कौन है पता है आपको? वो रावण है, जिसको आप हर वर्ष जलाते तो भी नहीं जलता। कभी भी आप देखिए कोई व्यक्ति मरता है, उसको कितनी बार जलाते? एक ही बार। फिर उसकी बरसी मनाई जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसका एक पुतला बना के फिर अभी भी हम जा रहे हैं कि आज के दिन वो मरा था, अभी उसका दहन क्रिया करने जा रहे। रावण को तो हर वर्ष लंबा ही लंबा करते रहते। तो क्या है, वो इंसान नहीं है। अगर इंसान होता तो एक बार जला दिया, खत्म। लेकिन ये है हमारे अंदर जो सिंस है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार और 5 कर्मेंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करनी, इसलिए बोलते विजय दशमी, है ना? तो इसलिए 10 को हराना भी है और 10 पर विजय प्राप्त करनी है। तो इस नए वर्ष में हम सब सदा खुश रहने के लिए अपने अंदर के रावण को जला दें। सभी पापों से बच जाएंगे, पाप के माँ बाप भी जल जाएंगे रावण के साथ। तो हम क्या बन जाएंगे? डिवाइन पर्सनैलिटी, देवी देवताएं। क्योंकि हमारे पूर्वज जो है ना वो बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो देवी देवता ही थे। इसलिए आज भी हम बंदरों की पूजा करते हैं क्या? हम किसकी पूजा करते मंदिरों में? देवी देवताओं की। तो इसलिए हमारे पूर्वज थे देवी देवताएं। वो कहाँ गए? उनका ही पतन होते 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 आज हम इस स्थिति में हैं कि हम सब कलयुग में आ गए और हम अपने को देवता नहीं मानते। और देवताओं का नाम भी पुराने लोगों का होगा, कोई लक्ष्मी नारायण सीताराम। अभी आज के बच्चों का रखो तो सही, आप बड़े होने के बाद बोलेंगे क्या कोई नाम नहीं था डिक्शनरी में? मेरा नाम इतना पुराने ज़माने का रखा है। पहले के लोग रखते इसलिए थे कि चलो इसी तरह अपने बच्चे को बुलाएंगे तो भगवान को बुद्धू समझते ना वो लोग, ये हे नारायण, तो भगवान समझेगा मुझे बुला रहे हैं उसको भी पता है अपने बेटे को बुला रहे हैं। परंतु भावना ये थी कि हमें परमात्मा की याद आए, ऐसा नाम ले। तो इसलिए इस वर्ष हम लोगों को भी परमात्मा ने आज एक गुण दिया है, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता। सारे वर्ष में हम अगर संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे तो हमारी खुशी सदा कायम रहेगी। तो सदा खुश रहना है और दूसरों को खुशी बांटनी है, खुशी की मिठाई। और कोई व्यक्ति अगर कुछ गलती करता भी है, वो तो रावण के वशीभूत है ना। अभी कोई किसी में भूत आता है तो आप उसको मारते हो क्या? क्या करते? भूत निकालने वाले के पास लेकर जाते ताकि ये भी अच्छा हो जाए। कोई व्यक्ति गिरे तो आप उसको लात मारते हो या हाथ पकड़ते हो? गिर रहा है कोई सीढ़ी से, क्या करते हैं हम? हाथ पकड़ के उठाएंगे, ऊंचा उठाया जाता है ना। तो भगवान ने भी आज हमको यही बोला कि गिरे हुए को गिराना नहीं है, गिरते हुए को ऊंचा उठाओ, भले मेरे से भी ऊंचा चला जाए। खुश होना। मुझे बहुत खुशी होती है, हमारी छोटी बहनें आगे बढ़ती हैं, वो लोग स्पीच देती, मैं बहुत खुश होती हूँ। पीछे बैठ कर की भी साक्षी होकर देखती हूँ। दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर लोग जो है ना अंदर जलते हैं, अरे मेरे से आगे चली गई। हमको परमात्मा ने फॉर्मूला दिया है, जो दूसरों को आगे बढ़ाएगा वो स्वयं आगे हो जाएगा। कईयों को डर लगता है इसको बढ़ा दिया ना फिर मेरा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा भी। सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई सम्मान करता है, आपके गले में माला डालना चाहता है और आप अकड़ के खड़े हो जाओ। माला डालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको?
शीश झुकाना पड़ता है। तो जीवन में भी झुकना सीखें। झुकने में कोई भी ऐसा नहीं आप छोटे बन जाते हैं, ये महानता है। जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ होता है। खजूर भी फल देता है लेकिन बहुत ऊपर उसके फल रहते हैं ना। हाँ, बोलते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कोई नीचे खड़े होकर के सोचे थोड़ा शेडो मिले हमें, छाया मिले, कभी नहीं। वो इतना ऊपर है, उसकी पत्तियां भी ऐसे खड़े हैं, वो भी स्ट्रेट, ना छाया है ना उसका फल कोई। और जो झुका हुआ वृक्ष रहता है, बच्चे भी आम तोड़ के खा लेते हैं। हमारे बगीचे में तो सारे आम झुके हुए रहते हैं, अगर कोई बच्चा आ जाए तो पेड़ साफ। हम चिल्ड्रंस प्रोग्राम रखते ना गर्मी में, तो इतना हमको लगता है अब ये आए ना बच्चे, अब एक आम पेड़ पर नहीं बचने वाला है। खुशी भी होती है क्योंकि भगवान के घर में तो सबका अधिकार है ना, खाने का भी, लाने का भी अधिकार है, तो खाने का भी अधिकार है। और बड़े खुश होते बच्चे कि हमको लाठी भी नहीं मारनी पड़ी, पत्थर भी नहीं मारना पड़ा, लेकिन फल हमको नीचे ही मिल गया। तो इसलिए याद रखना, नव वर्ष में क्या क्या करना है। खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है और खुशी का प्रसाद बांटना है। मिठाइयाँ नहीं बांटना, क्योंकि मिठाइयाँ कोई नहीं खाना चाहते। मिठाई से बीमार होते हैं, वेट बढ़ता है, तो आजकल सब नमस्कार करते हैं, मीठा नहीं खाना है। तो आप सब, मैं समझती पिछले साल में कम मिली, तो आज नव वर्ष में आप सभी को भगवान के घर में ब्रह्मा भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया है। तो आप सबको पूरा भोजन मिलेगा, तो नीचे जाकर डाइनिंग में आप सब भोजन स्वीकार करके जाना। और उस भोजन से आपको बहुत अच्छे वाइब्रेशन अनुभव होंगे, क्योंकि पवित्र योगी आत्माएं, बाल ब्रह्मचारी हमारे भाई बहनें जो है ना, वो भोजन बनाते हैं। गृहस्थी भी ब्रह्मचारी हैं, वो लोग ही भोजन में हाथ लगाते। वरना वैसे बाहर के उड़ीसा के लोगों का है प्रोग्राम, वो बोले हमारे लोग पकाएंगे तो चलेगा। मैं बोली आपको चलेगा, हमको नहीं चलेगा। और हमारे किचन में हम भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते, इसलिए किसी को बनाने नहीं देते, हम ही बनाएंगे। तो इसलिए आप सबके लिए भी हमने इंक्लूड किया था कि संडे टॉक में जो भी आएंगे नव वर्ष में, क्योंकि आपको पार्टी देनी है ना, हाँ, तो शिव बाबा भी आपको पार्टी दे रहा है। तो आज आपको नए वर्ष की पार्टी में आमंत्रित किया गया है। ओम शांति। Om Shanti. Thanks a lot to Didi for divine blessings and a wonderful start for 2025 for us. Right? हमें 3 बातें बताई हैं दीदी ने जो हमें फॉलो करना है इस साल में. So thanks a lot to Didi again. Let's give one more round of applause, please. So next we have a song presentation from Sister Vishnu Priya. Happy New Year to you, to you, to you. Happy New Year to you, to you, to you. Very Happy New Year to you, to you, to you. Happy New Year to you, to you, to you. कल के तराने हुए पुराने, गाओ रे मेरे संग कोई गीत नया. Happy New Year to you, to you, to you. Happy New Year to you, to you, to you. शान सुहानी साल गिरानी कहती है हमसे
मुझे कर दो विदा। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू यू, टू यू। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ला 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 ला। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू यू, टू यू। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, टू यू। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू यू, टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, टू यू। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू यू, टू यू। Even happy new year, new year to you. Om Sai. तो आज हम सभी का भाग्य है, दीदी हम सभी को न्यू ईयर में ब्लेसिंग्स भी दिया और अभी केक भी देंगे। सो थैंक यू वेरी मच दीदी, आप आए, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि हमारा नया साल, नई शुरुआत ब्लेसिंग्स से शुरू हुआ।